Good morning, student. Question number 12. Set A, set of all triangles. इस सेट में रिलेशन R डिफाइंड है. कैसे? T1, T2 such that T1 is similar to T2. हमें प्रूफ करना है कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसके अलावा तीन ट्राइंगल दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, T1, T2, T3. इनकी साइड्स दे रखी हैं. हमें बताना विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड. तो फर्स्ट पार्ट में चलते हैं. फर्स्ट पार्ट में इक्विवेलेंस के लिए पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे. यू नो एवरी ट्राइंगल सिमिलर टू इटसेल्फ मीन्स T1 similar to T1. इट मीन्स अब ये सबके लिए लागू होता है तो हम लिखेंगे फॉर ऑल T1 इज एलिमेंट ऑफ A. इसमें जितने भी ट्राइंगल हैं इनकी सबके लिए लागू होगा. तो देयरफॉर वी कैन राइट दिस T1, T2 एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल T1 is element of A. Therefore, R is reflexive relation. Reflexive relation. For symmetric, you know T1 similar to T2. T1 और T2 similar हैं, तो implies that simply T2 is similar to T1. T1, T2 एलिमेंट ऑफ A. A में कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए तो हम सिंपली कह सकते हैं इफ T1 इज सिमिलर टू T2 इट मीन्स T2 इज सिमिलर टू T1. मीन्स T1, T2 एलिमेंट ऑफ R implies that T2, T1 element of R, T1, T2 element of A. Therefore, R is symmetric relation. Symmetric relation. For transitive, you know कोई भी तीन ट्राइंगल ले लेते हैं T1, T2 एंड T3. इफ T1 सिमिलर टू T2 एंड T2 सिमिलर टू T3 इट मीन्स T1 सिमिलर टू T3. T1, T2, T3 एलिमेंट ऑफ A. कोई भी A में तीन ट्राइंगल ले लें, अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T1 के सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है T1 T3 के सिमिलर जरूर होगा. मीन्स T1, T2 एलिमेंट ऑफ R एंड T2, T3 एलिमेंट ऑफ R implies that T1, T3 element of R, T1, T2, T3 element of A. Therefore, R is transitive relation. Transitive relation. Simply, R is reflexive, R is symmetric, and R is transitive relation. So you can write here R is an equivalence relation. Okay. सेकंड पार्ट में देखिए T1, T2 एंड T3 तीन ट्राइंगल से हैं. अब हमको बताना है इनमें से कौन से ट्राइंगल रिलेटेड है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? जब वो सिमिलर होंगे. यू नो ट्राइंगल जो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं. यहां पर अगर हम देखें T1 और T3 में सिंपली यू नो
3/6, 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2, यानी कि T1 की साइड और T3 की साइड प्रोपोर्शनल है, मीन्स इनका रेशियो 1/2 सेम रेशियो है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इट मीन्स T1, T3 एलिमेंट ऑफ R, मतलब T1 एंड T3 क्या है? रिलेटेड हैं। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, a set A, क्या है set A? Set A of all polygons, set of all polygons, right? A relation R defined this set R equal to P1 comma P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Okay, we have to prove this relation is an equivalence relation. सिंपल सी बात है, दो पॉलीगन P1 एंड P2 रिलेटेड कब कहलाएंगे? जब उनमें नंबर ऑफ साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी यू कैन राइट, सिंस P1 and P1 have same number of sides। भाई कोई भी पॉलीगन हो आपका ए में से, उसमें जितनी साइड है, यानी सपोज उसकी नाम P1 है, तो P1 में नंबर ऑफ साइड P1 में नंबर ऑफ साइड के इक्वल होंगे। फॉर ऑल P1 is element of A. So we can write P1 comma P2 element of R, P1 comma P1 element of R, for all P1 is element of A. It means R is reflexive relation। सिमेट्रिक के लिए you know P1 and P2 have same number of sides, तो it means P2 and P1 have same number of sides. It means P1 comma P2 element of R. This implies that P2 comma P1 element of R. This is true for any P1 comma P2 element of A. So we can write R is symmetric relation। R is symmetric relation। सिमिलरली ऐसे ही सपोज तीन पॉलीगन्स हैं P1 P2 P3, कैसे हैं? P1 and P2 have
same number of sides, and P2 and P3 have same number of sides. Naturally, we can write P1 and P3 have same number of sides. In mathematically, we can write P1 comma P2 element of R and P2 comma P3 element of R implies that P1 comma P3 element of R, therefore R is transitive relation. Transitive relation. Simple. R is reflexive, R is symmetric, and R is transitive. So we can write R is an equivalence relation. Any problem? No problem. तो इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं. In second part of question number 13, what is the set of all elements A related to the right angle triangle? Right angle triangle. Triangle T have sides 3, 4, 5. Simple. एक चीज ध्यान रखिए, टी में साइड की मेजरमेंट कितनी है, यानी साइड कितनी लंबी है या छोटी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल सी बात है, टी एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड है, तो टी से रिलेटेड पॉलीगन्स क्या होंगे भाई, जिनमें 3 साइड होंगी, ऐसे पॉलीगन्स को क्या कहते हैं, ट्रायंगल. तो सिंपल सेट ऑफ polygons related to triangle T. सपोज सेट को A कहते हैं, A क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल. Any problem? No problem. Simply next question. Question number 14. Question number 14. L be the set of all lines in XY plane. L be the set of all lines in XY plane. XY प्लेन में जितनी भी लाइंस पॉसिबल हैं उन सब का सेट L है. सेट L में रिलेशन R डिफाइंड है, L1, L2 such that L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. We have to prove that R is an equivalence. Simply, you know, L1, any L1 element of this set L parallel to itself, कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होगी, नेचुरल सी बात है. सो वी कैन राइट L1 इज पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 इज एलिमेंट ऑफ
L. So we can write L1 comma L1 element of R for all L1 is element of L. Therefore R is reflexive relation. Next, L1 parallel to L2. This implies that L2 parallel to L1. भाई L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी. This is true for any L1 L2 of element L. So we can write L1 comma L2 element of R implies that L2 comma L1 element of R, L1 L2 element of L. Therefore R is symmetric relation. Symmetric relation. For transitivity, you know L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3. It means L1 parallel to L3. This is true for any L1, L2, L3 element of L. So we can write L1 comma L2 element of R and L2 comma L3 element of R implies that L1 comma L3 element of R for any L1 comma L2 comma L3 element of L. So R is transitive. R is reflexive, R is symmetric, R is transitive. So you can write therefore R is an equivalence relation. Guys, इसमें एक और पार्ट है. क्या है? Find the set of all lines related to line this. Given line y equal to 2x plus 4. Compare with y equal to mx plus c. This is slope intercept form of line. हम इससे कंपेयर करें तो m स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 2. अब हमें बताना है इस लाइन से रिलेटेड लाइन का सेट. सिंपल सी बात है, इस लाइन से रिलेटेड लाइन कौन सी होंगी? जो इस लाइन के पैरेलल होंगी. आप जानते हैं पैरेलल लाइन में एक ही चीज सेम होती है, क्या? उनका स्लोप इक्वल होता है. तो इस लाइन से रिलेटेड जो लाइन होंगी उन सब का स्लोप कितना होगा? 2. तो therefore we can write set of lines related to given line. क्या होगा? x such that x is a line of xy plane having slope 2. मीन्स जो गिवन लाइन है उससे रिलेटेड लाइंस का जो सेट है वो xy प्लेन में मौजूद ऐसी सारी लाइनें उस सेट में होंगी जिनका स्लोप क्या है? 2 है.
Okay, question number 14. Now 15, question number 15 and 16, two optional questions. Question number 15, R be the relation in set. This is given set. Given set 1, 2, 3, 4. इस सेट में रिलेशन R डिफाइंड है. R में एलिमेंट है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2. चूज द करेक्ट आंसर. तो हमें बताना है ये रिलेशन R जो है किस तरह का रिलेशन है. सिंपल सी बात देखिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4 एलिमेंट ऑफ R मीन्स सेट जो गिवन सेट है इसके सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड हैं. इट मीन्स रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक होने के लिए देखिए 1, 2 है, इसमें 2, 1 नहीं है. 1, 3 है तो 3, 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है. तो इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. 1, 3, 3, 2, देन 1, 2. देखिए A, B, C, तो A, C भी है इसमें. इट मीन ट्रांजिटिव ही है. तो ट्रांजिटिव भी है. रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड transitive but not symmetric. Okay, last question in this exercise, question number 16. Question number 16, R be the relation in set n. सेट n में एक रिलेशन R कैसे दे रखा है? A, B such that A equal to B minus 2, B is greater than 6. सिंपल सी बात है. A, B R का एलिमेंट है. कब? जिसमें A जो है B से 2 कम है और B क्या हो सकता है? 6 से बड़ा हो सकता है. 6 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है? 6 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है? 7. B अगर 7 है, A इससे 2 कम कितना हो सकता है? 5. सपोज B आपका 8 है तो उससे 2 कम कितना होगा आपका? 6. तो ये एलिमेंट होंगे डॉट डॉट एलिमेंट ऑफ क्या होंगे? R. अब हमको इसमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं. कौन सा एलिमेंट R में होगा? 2, 4 डेफिनेटली नहीं है. 3, 8 भी नहीं है. 6, 8. आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है 6, 8 इज राइट ऑप्शन. एक्सरसाइज कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे फंक्शन. फंक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में